Hello everyone, myself Dr. Raji Gupta. I am taking a lecture series of the topic stereochemistry where I am taking the explanation of various multiple choice questions which could be found in this topic. Many MCQs I had explained in a previous lectures. Now the next 20th number MCQ is the molecules below are, we have to see isomeric relation in between these two molecules. So first of all we have to check the molecular formula. So molecular formula of both these structures are same. Both have cyclopropane ring with two substituents, chloro and methyl. Here chloro and methyl. Okay. Now we have to check either these are constitutional isomers, anisomers, diastereomers, identical compounds, or none of these. So the first of all we have to check constitutional isomerism or regioisomerism. These two structures are not constitutional isomers because here both hydrogen atoms are cis hydrogen atoms, both are cis, present or cis position or syn position. Also we can see that the sequence of bonding of atoms are exactly same in both these structures, so constitutional isomerism concept is cancelled. Now we can check these three concepts, anisomer, diastereomer or identical. So to check this, if these two structures are superimposable, then we will say that these are identical. If these are not superimposable and mirror images of each other, then we will say these are anisomers. And if both these structures are not mirror images, then we will say that these are diastereomers. So first of all we check the identical relation if it is present or not. So we can rotate this molecule like this, and we what to do here, we want to superimpose this first structure over this second structure. So to do this we have to put, or we have to rotate, or we have to turn this molecule like that if it is superimposed or not. So what we can do, just rotate this structure we can do rotation, or these structures obviously could not be identical because these are not superimposable. Okay, these are not superimposable. We cannot superimpose these structures. Also both have the cis or syn manner arrangement of these two groups, or we can say that these two hydrogens are present in cis manner. So these could not be geometrical isomers. Okay, these could not be geometrical isomers, means these could not be diastereomers, because geometrical isomers are also called diastereomers. In both cases both are cis. So diastereomer possibility is cancelled, identical possibility is also cancelled. So these could be anisomers. So to see this anisomeric phenomena, anisomeric concept, we have to make a mirror image of these two structures. So how we can rotate this first structure?
just rotate this structure by 120 degree angle in plane of the paper. Okay, 120 degree angle in plane of the paper, choosing this axis. Okay, this axis, the axis is just perpendicular to the molecular plane or perpendicular to the cyclopropane ring plane. Okay, so by this 120 degree rotation we get this structure. I am drawing here. The methyl group will come to this side, CH3. Over here hydrogen atom is present, and this chloro group goes to this side, and over here this hydrogen atom. Okay, so by applying this rotation by 120 degree we get this identical structure. Okay, these are both identical. Now compare these both structures, or we can say that these both are mirror images. Okay, see this chloro atom, this methyl group. So these both structures are mirror image of each other. Both are chiral. Okay, both structures are chiral because plane of symmetry or center of symmetry is not present. So these both are anisomers. So the option B is correct. Now the next question, which molecule is achiral? We have to choose only one molecule or more than one molecule which is achiral. A achiral molecule is that molecule which contains a plane of symmetry or a center of symmetry, either plane or center. If any one plane of symmetry of both is present, then we say that molecule will be achiral. तो उस तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पर achiral मॉलिक्यूल कहलाएगा जिसमें या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो. तो हमको इस तरह की सिमेट्री एलिमेंट हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा. चलिए हम पहला मॉलिक्यूल चेक करते हैं. इस मॉलिक्यूल में यदि हम इस सेकेंड नंबर किरल सेंटर पर इवन नंबर में इंटरचेंज करें, देखिए इस पहले मॉलिक्यूल में, पहले फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर में जो ये दोनों कार्बन एटम है वो किरल कार्बन है. देखिए ये भी किरल कार्बन है. 1 2 3 4 चारों ग्रुप्स डिफरेंट, यहाँ पर भी चारों ग्रुप डिफरेंट, तो दोनों की दोनों किरल सेंटर हैं. तो इस सेकेंड नंबर किरल सेंटर पे हम इवन नंबर में चेंज करते हैं. तो इवन नंबर में चेंज करने पर हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? देखिए ऊपर तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हम ऊपर इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, हम नीचे वाले सेकेंड नंबर किरल सेंटर पे इंटरचेंज कर रहे हैं. तो पहला इंटरचेंज मैं करता हूँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम के बीच में. तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे ब्रोमीन एज इट इज़ रहेगा. अब मैं सेकेंड नंबर इंटरचेंज करता हूँ. सेकेंड नंबर इंटरचेंज करने पर हमको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगी. तो हम दो एटम्स चूज़ कर लेते हैं. तो यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ ब्रोमीन एंड क्लोरीन. ओके, तो अभी हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? देखिए ऊपर की तरफ तो ये हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन एज इट इज़ रहेगा, और नीचे की साइड सबसे नीचे हाइड्रोजन भी एज इट इज़. ब्रोमीन और क्लोरीन को हमने इंटरचेंज किया तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन. अब क्या हुआ एक्चुअल में, ये जो सेकंड नंबर किरल सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसके एग्जैक्टली सेम है. मतलब ये जो पहला मॉलिक्यूल और ये जो सेकंड मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है वो एकदम आइडेंटिकल है. अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं. देखिए इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ये सभी के सभी आपस में मिरर इमेज बन रहे हैं. मतलब मॉलिक्यूल एकदम जस्ट हाफ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जस्ट हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और दोनों की दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज हैं. मतलब यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. मतलब दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल इज achiral. ओके, दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो सकता है. अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर को चेक करते हैं. सेकेंड स्ट्रक्चर में भी आपको इसी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना होगा. तो उसके लिए आप इवन चेंजेस, इस इवन नंबर चेंजेस इस प्रकार से कर सकते हो. तो अगर आप देखिए इवन चेंजेस मैं करता हूँ
तो सपोज कीजिए मैं इवन चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर, क्लोरीन कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और ब्रोमीन कहाँ शिफ्ट हो गया इधर। ये दिस इज़ फर्स्ट चेंज विच इज़ ऑड नंबर चेंज। अब सेकंड अगेन दूसरा चेंज करना है, तो उसको करने के लिए मैं इंटरचेंज करता हूँ इन दोनों के बीच में। तो ब्रोमीन कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पर अरेंजमेंट क्या हुआ, यहाँ पर क्या है ब्रोमीन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। इस मॉलिक्यूल में ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल किरैल मॉलिक्यूल है। ओके, दिस इज अ किरैल मॉलिक्यूल। नाउ हम थर्ड स्ट्रक्चर चेक करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए जो पहला कार्बन है वो किरैल कार्बन है, क्योंकि क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन और ये CBr2Cl ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन जो सेकंड नंबर कार्बन है वो किरैल कार्बन नहीं है, क्योंकि दोनों की दोनों ब्रोमीन एटम है। सेम दो ब्रोमीन एटम एक सिंगल कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, तो ये सिंगल जो ये कार्बन एटम है सेकंड कार्बन एटम वो किरैल कार्बन नहीं है। तो अभी हम ओनली पहला कार्बन एटम चेक करना है। तो ये पहला कार्बन एटम क्या है, किरैल, क्योंकि हमको पता है कि किरैल कार्बन क्या होता है, किरैल कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो वही किरैल कार्बन है। तो दिस इज अ किरैल कार्बन। ओके, और जब भी किसी मॉलिक्यूल में एक सिंगल किरैल कार्बन प्रेजेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है, किरैल। वो मॉलिक्यूल हमेशा किरैल होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ए। ओके, सेकेंड किरैल नहीं है, थर्ड भी किरैल नहीं है, मोर देन वन हो ही नहीं सकते क्योंकि सिंगल है, और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल इज ए किरैल। अगेन हमको वही चीज चेक करनी है, हमको यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। देखिए जनरली ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ही चेक करते हैं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करने से ही जनरली रिजल्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको अगर मॉलिक्यूल की किरैलिटी या ए किरैलिटी चेक करनी है तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करके देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए जो हम पहला मॉलिक्यूल देखता हूँ मैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो पहला कार्बन एटम है वो ए किरैल है, क्योंकि दोनों सेम हाइड्रोजन एटम यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर दूसरा कार्बन देखेंगे तो दूसरा कार्बन एटम यहाँ पर किरैल कार्बन है, क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग हैं। देखो क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, हाइड्रोजन, so this molecule contains only one chiral center। तो जिन मॉलिक्यूल्स में ओनली एक किरैल सेंटर होता है वो मॉलिक्यूल्स हमेशा किरैल होते हैं। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो एक किरैल स्ट्रक्चर है, किरैल मॉलिक्यूल है। दूसरा हम देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड मॉलिक्यूल में जो पहला कार्बन एटम है वो किरैल कार्बन है, क्योंकि चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। उसी तरह से दूसरा कार्बन एटम भी किरैल है, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर किरैलिटी है या नहीं उसको देखने के लिए हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, कि क्लोरो ग्रुप आपस में मिरर इमेज बनेंगे। अगर आप ये प्लेन यहाँ पर लगा के देखो तो ये मिरर इमेज बनेंगे, लेकिन ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन जो हैं वो आपस में मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल भी यहाँ पर किरैल है। ओके, फर्स्ट इज़ किरैल, सेकंड इज़ आल्सो किरैल। नाउ हम चेक करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में भी दो किरैल सेंटर हैं। अब यहाँ पर फिर से हम वही कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि हम इवन चेंजेस करके देख सकते हैं सेकंड पोर्शन में। जो ये नीचे का पोर्शन है किरैल कार्बन वाला, उसमें अगर हम फर्स्ट इंटरचेंज करें तो फर्स्ट इंटरचेंज करने पर हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए ब्रोमीन ऊपर की तरफ तो एज इट इज़ रहेगा, क्लोरीन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे फर्स्ट इंटरचेंज करते हैं हम, सपोज कीजिए इन दो एटम्स को लेकर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरीन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर ब्रोमीन। अब इसके बाद सेकंड इंटरचेंज करते हैं
तो सेकंड इंटरचेंज में हम ब्रोमीन और क्लोरीन को कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? ऊपर का पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, ब्रोमीन, दिस क्लोरीन, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आएगा? क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर ब्रोमीन। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मीन्स जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल ए किरल मॉलिक्यूल होता है, मीन्स मॉलिक्यूल थर्ड इज ए किरल। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। अदर ऑप्शंस हम यहाँ पे हटा देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूल्स बिलो आर। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में किस टाइप का आइसोमर रिलेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या चेक करते हैं कि वी हैव टू चेक फर्स्ट दी मॉलिकुलर फार्मूला। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मॉलिकुलर फार्मूले में फर्स्ट स्ट्रक्चर में 3 कार्बन एटम है, दूसरे में भी 3 कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन्स देखिए 1 2 3 4 5 6, दूसरे में हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स। नाउ फ्लोरीन एटम्स 1 2, यहाँ पे भी देखेंगे फ्लोरीन एटम्स 1 एंड 2, मीन्स इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो दोनों का सेम है, मीन्स C3H6 एंड F2, दिस इज द मॉलिकुलर फार्मूला। तो ये दोनों की दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो सकते हैं या फिर किसी टाइप के स्टीरियो आइसोमर या फिर आइडेंटिकल। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या रेजियो आइसोमर्स। तो उसके लिए हमको ये जो फ्लोरीन एटम्स यहाँ पे जुड़े हैं, देखिए ये किसका डेरिवेटिव है? इथेन प्रोपेन मॉलिक्यूल है, 1 2 3 3 कार्बन का प्रोपेन मॉलिक्यूल। प्रोपेन में 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो प्रोपेन का डेरिवेटिव है डाईफ्लोरो डेरिवेटिव। तो देखिए जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पर फ्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें पोजीशन नंबर 1 पे फ्लोरीन है और उसके बाद पोजीशन नंबर 3 पे फ्लोरीन एटम है। मतलब ये दोनों की दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर्स हैं। पहले कंपाउंड का नाम अगर हम IUPAC नाम बताएंगे तो क्या होगा? 1 2 डाईफ्लोरोप्रोपेन, लेकिन दूसरे का नाम क्या है? 1 3 डाईफ्लोरोप्रोपेन। So these are positional isomers and positional isomers are always constitutional isomers. So option A is correct. Now next question 24th number, the structures represent। 2 स्ट्रक्चर्स दी गई हैं हमको, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको बताना है कि ये दोनों की दोनों सेम कंपाउंड हैं। सिंगल कंपाउंड मीन्स सेम कंपाउंड या आइडेंटिकल कंपाउंड, या फिर ये एनिशोमर्स हैं, या फिर ये दोनों मीजोफॉर्म्स हैं, या फिर ये दोनों आपस में डायस्ट्रोमर रिलेशन रखते हैं, यानी डायस्ट्रोमर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं, या फिर ये आपस में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में रिलेशन ही पूछा जा रहा है कि दोनों की दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना, एनिशोमर्स हैं, मीज़ो हैं, डायस्ट्रोमर्स हैं या कॉन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि दोनों कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो सेम है या नहीं। तो दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं, हम कहेंगे मॉलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है। दोनों में साइक्लोहेक्सेन चेन है, चेयर फॉर्म में, बोथ आर चेयर फॉर्म्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स, पहला मिथाइल ग्रुप और सेकंड मिथाइल ग्रुप, दूसरे में भी ये फर्स्ट मिथाइल एंड सेकंड मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। उसके बाद में अगर हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो ये दोनों की दोनों कॉन्स्टिट्यूशनली भी सेम है, मतलब सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स भी सेम है। तो अब हम सीधे आ जाते हैं कि या तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हो सकता है, या फिर ये कॉन्फिगरेशनल या फिर स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों आइडेंटिकल हों या सिंगल कंपाउंड हो। तो आइडेंटिकल या सिंगल कंपाउंड होने के लिए हमको इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, मीन्स दोनों की दोनों सिंगल कंपाउंड हैं, दोनों की दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इसको सुपर इम्पोज करने के लिए
आपको सिर्फ इन दोनों स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा 3 डायमेंशन में इमेजिन करना पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर को एक एक्सिस, ये वाला एक्सिस चूज़ करता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक एक्सिस चूज़ कर रहा हूँ जो इस साइक्लोहेक्सेन रिंग के सेंटर में से जा रहा है, ओके। और इस साइक्लोहेक्सेन रिंग की जो ये इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं, उन इक्वेटोरियल पोजीशंस के ऑलमोस्ट पैरेलल है, वो वाला एक्सिस के अराउंड मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूँ, ओके। 180 डिग्री इसको रोटेट करता हूँ। तो 180 डिग्री रोटेट करने पर देखिए यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप्स एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है वो रोटेट होने के बाद में यहाँ एक्सियल पोजीशन पर आएगा, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो यहाँ इस साइड इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाई देगा। मींस इस एक्सिस से आप जब इसको रोटेट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। मींस कि ये दोनों की दोनों जो हैं वो सुपर इम्पोजेबल हैं, दोनों की दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। तो दोनों आइडेंटिकल हैं या सिंगल कंपाउंड्स हैं, बिकॉज दोनों के दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं। तो यहाँ पे पोजीशंस देखिए, यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशंस है वो 1-3 पोजीशन है, दैट इज़ 1-3 पोजीशन, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर भी देखिए पोजीशन 1, 2 एंड 3। एक ग्रुप जो है वो एक्सियल पोजीशन पर है और दूसरा जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे। दूसरे में भी आप देखिए ये इक्वेटोरियल पे ही है और पहले वाला एक्सियल पे ही है। मींस एक्चुअल में दोनों की दोनों आइडेंटिकल हैं। सो आंसर क्या होगा? ए। बाकी सभी आंसर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स द सेम कंपाउंड? इस तरह के पेयर्स हमको यहाँ चूज़ करने हैं जो कि सेम कंपाउंड या आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। तो इसमें 1 और 2 आइडेंटिकल हो सकते हैं, 1, 3 आइडेंटिकल हो सकते हैं, 1, 4 हो सकते हैं, 1, 5 हो सकते हैं। मीन्स हमको कोई भी एक ऐसा ग्रुप चूज़ करना है, ऐसा पेयर चूज़ करना है जो कि आइडेंटिकल हो। तो इनमें से, इन सभी में से हमको सिर्फ और सिर्फ 2 कंपाउंड्स ऐसे चूज़ करने हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस को देखें ABCDE सभी ऑप्शंस को देखें तो इनमें सिर्फ 2 कंपाउंड्स को इंक्लूड किया गया है। ओनली 2 कंपाउंड्स आर इंक्लूडेड। सो कोई भी 2 कंपाउंड्स हमको ऐसे चूज करने हैं जो आपस में आइडेंटिकल हों। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मॉलिक्यूल पे विचार करते हैं। इसमें तीनों की तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स सेम साइड में प्रेजेंट हैं। इस फिशर प्रोजेक्शन में तीनों की तीनों एक तरफ प्रेजेंट हैं, लेकिन बाकी किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, किसी भी स्ट्रक्चर में तीनों की तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड में, एक साइड में प्रेजेंट नहीं है। मींस ये कंपाउंड इनमें से किसी का भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता। तो हम इसको पहले से ही कट कर देते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकंड कंपाउंड में जो सेंटर वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हुई है, वो लेफ्ट साइड में आ गया है और बाकी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स राइट साइड में प्रेजेंट हैं। अब इसको आइडेंटिकल नेचर को चेक करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हम फिशर प्रोजेक्शन को किस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। यानी फिशर प्रोजेक्शन में कुछ अलाउंस होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिशर प्रोजेक्शंस अलाउंस में हम फिशर प्रोजेक्शन को प्लेन ऑफ द पेपर में 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। यानी किसी फिशर प्रोजेक्शन को अगर प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द स्क्रीन में 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो जो हमको फाइनली जो फिशर प्रोजेक्शन मिलेगा वो पहले वाले के जैसा ही होता है, यानी उसके जैसा ही आइडेंटिकल होता है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से रोटेट करें या किसी भी तरह से देखें तो ये इनमें से किसी से भी रिलेवेंट नहीं है। यानी इन तीनों में कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर 2 टर्मिनल OH ग्रुप एक साइड में हो और मध्य वाला, सेंटर वाला OH ग्रुप एक तरफ हो। ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। तो हम इसको भी यहाँ पे कट कर देते हैं, यानी ये भी किसी का आइडेंटिकल होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम थर्ड पर विचार करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में फिर मैंने वही कहा कि हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन अलाउंस में 180 डिग्री रोटेशन प्लेन ऑफ द पेपर। इन प्लेन ऑफ द पेपर अगर हम अप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए मैं इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री 180 डिग्री
प्लेन ऑफ द पेपर में रोटेट करता हूँ तो हमको क्या मिलेगा, देखो हमको इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ये जो मिथाइल ग्रुप है नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। ये जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा और ये दोनों OH ग्रुप जो हैं वो रोटेट होकर इस तरफ चले जाएंगे। यानी हमको कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, ऊपर मिथाइल ग्रुप, यहाँ OH, यहाँ पर H मिलेगा। नाउ दिस OH गोज टू दिस साइड, OH, H and here CH3 मीन्स अब हम इस स्ट्रक्चर को हमको कंपेयर करना है बाकी की रिमेनिंग दो स्ट्रक्चर से, जो कि नंबर 4th है और नंबर 5th है। देखिए जो स्ट्रक्चर हमको अभी प्राप्त हुई है ये वाला स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर 5 के समान है, एकदम स्ट्रक्चर 5 के जैसा ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 5 दोनों की दोनों सेम कंपाउंड हैं, दोनों की दोनों आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज डी, वेयर स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 5 आर सेम कंपाउंड्स। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट डायस्ट्रोमर ऑफ फर्स्ट। So we have to check diastereomer relation between first and these 4. तो इन चारों में से यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कोई एक कंपाउंड ऐसा है जो फर्स्ट कंपाउंड का डायस्ट्रोमर है, यानी कि उसका नॉट मिरर इमेज आइसोमर है। ओके, दैट इज नॉट मिरर इमेज आइसोमर। बाकी दूसरे जो हैं वो या तो एनिसोमर हो सकते हैं या आइडेंटिकल हो सकते हैं, या कुछ या तो एनिसोमर होंगे या आइडेंटिकल होंगे, नहीं तो डायस्ट्रोमर इनमें से कोई भी एक पॉसिबल होगा। तो देखिए कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि इसका मिरर इमेज पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप देखिए मुझे सीधे ही दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्रक्चर सेकंड है वो इसका मिरर इमेज नहीं है। ओके, देखिए आप कि यहाँ पर जो दो OH ग्रुप हैं वो एक साइड में है, लेकिन यहाँ पर जो जस्ट नियर बाय जो OH ग्रुप्स हैं वो दोनों के दोनों एक साइड में हैं, लेकिन यहाँ पर जो टर्मिनल OH ग्रुप्स हैं वो एक साइड में है और बीच वाला जो OH ग्रुप है या सेंट्रल OH ग्रुप है वो एक साइड में है। तो ये दोनों की दोनों कभी भी मिरर इमेज नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 आर डायस्ट्रोमर्स। 1 and 2 are diastereomers, but okay, the 1 and 2 option is not present in our options. Okay, 1 and 2 is not present. Now we have to check all the compounds. Okay, we have to check all the compounds. So second is correct option, second is a correct answer, means second is diastereomer, but we have to choose some more compounds. So we have to check this diastereomeric relation of all these compounds with first one, means 1 and 2. First we have to check 1 and 2 and we get that this second is diastereomer of this first one. तो जो सेकंड नंबर स्ट्रक्चर है या सेकंड नंबर कंपाउंड है वो पहले वाले का डायस्ट्रोमर है। अब हमको थर्ड नंबर चेक करना है, तो थर्ड नंबर भी इसका डायस्ट्रोमर है, क्योंकि थर्ड नंबर में तीनों की तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एक तरफ हैं, एक साइड में हैं, लेकिन यहाँ पर दो एक साइड में और एक अपोजिट साइड में है। तो ये दोनों की दोनों कभी मिरर इमेज नहीं हो सकते, तो यहाँ पर थर्ड भी आ जाएगा। उसके बाद में हम फोर्थ नंबर देखते हैं। तो फोर्थ नंबर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअल में एक दूसरे के एनिसोमर हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर हैं और नॉट सुपर इम्पोजेबल आइसोमर हैं। ओके, देखिए अगर आप इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पर अगर आप रोटेशन करते हो तो आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए दोनों के दोनों OH ग्रुप यहाँ आ जाएंगे और ये OH ग्रुप इधर आ जाएगा, OH OH हियर OH, और रिमेनिंग सब वैसा रहेगा CH3 CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाउ इस स्ट्रक्चर को अगर आप फोर्थ स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे
तो ये दोनों के दोनों आपको मिरर इमेज आइसोमर दिखेंगे, यानी कि दोनों आपस में क्या है, एनीसोमर। क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, फर्स्ट कंपाउंड और फोर्थ कंपाउंड किरल कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों के दोनों मिरर इमेज भी बन रहे हैं और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, तो दोनों के दोनों एनीसोमर होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हम कट कर देते हैं। अब आते हैं फिफ्थ ऑप्शन पे। तो फिफ्थ में अगर आप इसको, ये जो स्ट्रक्चर मैंने 180 डिग्री रोटेशन से बनाया है, इसको फिफ्थ स्ट्रक्चर से आप कंपेयर करोगे तो दोनों के दोनों आपको आइडेंटिकल दिखाई देंगे। ओके, सो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर फिफ्थ आर आइडेंटिकल and structure 1 and structure 4th are anisomers, but structure 1, 2 and 3 are distomers. So correct option is second and third. The correct option is second and third. So the answer is B. Okay, now next question.